Hello everyone. Welcome to English Baba YouTube channel. I am Dr. Vijaya, educator of English language and literature. Today we'll analyze the poem A Valediction Forbidding Mourning written by John Donne, and this is the first chapter of English for BA students. As you can very well see from the first slide that John Donne had a time span of 1572 to 1631, and this poem he wrote for his wife Anne Moore when he was going on a trip. So his wife was feeling very sad at the depart. They both were separating. His wife was very sad at that moment, and he was consoling his wife. अपनी पत्नी को मना रहा था कि don't feel sad because our union is not of a physical nature. वो शारीरिक प्रेम नहीं है हमारा. Our union is a spiritual one. So you will enjoy this poem. Thoroughly watch the complete video so that you can answer the MCQs which I'll be posing to you at the end. And do answer them in the comment box. You'll really love the whole video and you'll really gain much knowledge. You'll enhance your vocabulary as well. So, fine. Let us move to the next slide. About the poem. The poem is a farewell speech. As I just told you, valediction means farewell speech, which was written in 1611 by metaphysical poet John Donne. Why is he called metaphysical? Because he used to write things which used to hit the sensual nerves. They were very emotional. They were very sensational. Means metaphysics means beyond physics, which cannot be touched, which can be only felt. So he was a metaphysical poet, and he wrote this poem for his wife Anne Moore while he was leaving for a short-term journey to continental Europe, France and Germany for conducting some government business. The poem was published in 1633, 2 years after Donne's death, in his collection Songs and Sonnets. Donne in this poem states that आध्यात्मिक प्रेम कहीं ऊंचा है शारीरिक प्रेम से. He says that spiritual love is much more refined, much more pure than the physical love. Because what happens? In spiritual love, what happens? The body is not connected. Soul is connected. Whereas in physical love, there is a relation of the body. So, शारीरिक प्रेम से कहीं ज़्यादा बेहतर है आध्यात्मिक प्रेम, मतलब आत्माओं का मिलन. It is a metaphorical poem. Metaphorical poem किसे कहते हैं? वह पोएम जिसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, सिमिली यूज़ किया गया, मतलब कंपैरिजन किया गया है किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ का किसी दूसरे चीज़ के साथ में. फॉर एग्जांपल इसमें जैसे लव का कंपेयर किसके साथ किया गया है? मरते हुए आदमी के साथ, भूकंप के साथ, तारा और नक्षत्रों के साथ, गोल्ड के साथ और मैथमेटिकल कंपास. एकदम अजीब बात है ये. आपको बहुत अच्छा लगेगा बाद में जान के कि दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करना ये कला थी जॉन डन की. वो खासियत थी उसकी कि उसका मेन औजार था कंपास. वो कंपास से लव की तुलना कैसे करता है आप देखिए. नाउ टाइटल ऑफ द पोएम. अब पोएम का टाइटल जैसे आपको बताया फॉरबिडिंग मॉर्निंग. वैलेडिक्शन का मतलब है फेयरवेल स्पीच. फॉरबिडिंग मतलब मना करना, मॉर्निंग मतलब उदास होना. ये एक फेयरवेल स्पीच है जो जॉन डन अपनी पत्नी को दे रहा है उससे विदा होते समय, जुदाई के समय, और उसे मना कर रहा है रोने से. उसे कह रहा है ही इज़ प्रिवेंटिंग हर टू एक्सप्रेस सैडनेस एट देयर पार्टिंग, कि हम जुदा हो रहे हैं लेकिन इस पर तुम उदास मत हो, इस पर तुम शोक व्यक्त मत करो. डन वॉन्ट्स टू से दैट व्हेन वी पार्ट वी मस्ट नॉट मोर्न. जब हम जुदा होंगे हमें रोना नहीं है. तो वैलेडिक्शन क्या है? फेयरवेल स्पीच जो जॉन डन ने अपनी पत्नी के लिए लिखी है. थीम क्या है पोएम का? पोएम की थीम जैसे वापस से बता देती हूँ आपको. मैं अभी बताया भी था कि टेम्पररी पार्टीशन बिटवीन एटर्नल लवर्स जब होता है तो उस एटर्नल मतलब अमर प्रेमियों के बीच में जब टेम्पररी पार्टीशन होता है तो उस पर शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए प्रेमिकाओं को और प्रेमी को, क्योंकि यह प्रेम उनका एटर्नल है, यानी कि इमॉर्टल है, यानी कि स्पिरिचुअल है. ये उनका सेंस ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, ये उनका आत्मा से संबंधित है. तो देयर लव इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल लव, दैट इज़ नॉट अ फिजिकल लव, इट इज़ अ स्पिरिचुअल लव. देयर लव इज़ सैक्रेड, पवित्र प्रेम है और इमॉर्टल है. और ये सब लोगों के बीच में व्यक्त नहीं करना चाहिए, खुलेआम नहीं जताना चाहिए.
फर्स्ट स्टैंजा है, As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say the breath comes now and some say no. इसका मतलब है कि जिस तरह से नोबल श्रेष्ठ आदमी, वर्चुअस मतलब श्रेष्ठ, जो जिनमें बहुत सारे गुण हैं, वर्चुअस मैन, नोबल मैन, ग्रेट मैन पास माइल्डली अवे, आराम से शांति से मर जाते हैं। पास अवे मतलब मर जाना, माइल्डली मतलब क्वाइटली, शांति से मर जाते हैं जिस तरह से। एंड विस्पर टू देयर सोल्स को, अपने आत्मा को बोलते हैं कि वो चुपके से उनका शरीर छोड़ दे। वे ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहते मरते समय, वो ना ही वे चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा हो हल्ला करें। वाइल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, और जो उनके इर्द गिर्द खड़े हैं उदास व्यक्ति, वे क्या करते हैं, सम से द ब्रेथ गोज नो और सम से नो, कुछ तो कहते हैं कि देखो अब बस जाने वाली जाने वो मरने वाला है, और कुछ कहते हैं ना ना अभी नहीं मरेगा, मतलब उसके मरने पर लोगों को पता भी नहीं चलता। वे ऐसे गुजर जाते हैं शांति से, ज़्यादा हो हल्ला किए बिना, कि लोगों को पता भी नहीं चलता। इसी तरह से कवि कहता है कि हमारा प्रेम भी श्रेष्ठ है, जैसे उन श्रेष्ठ आदमियों की तरह ही हमारा प्रेम भी नोबल है, ग्रेट है। तो हमें आसपास के लोगों को ये नहीं जताना है कि हम जुदा हो रहे हैं, हमें ज़रा हो हल्ला नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना है। तो डंस कंसोल्स हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ सेपरेशन एंड आस्क्स हर टू बिड हिम फेयरवेल कामली, क्वाइटली, विदाउट मेकिंग मच नॉइज, जस्ट लाइक द वर्चुअस मैन हु हैव फर्म फेथ इन गॉड डाई। तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली है। यहाँ पे सिमिली का मतलब होता है जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है एज या लाइक वर्ड यूज़ करके, तो वो सिमिली कहलाता है, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर डेथ ऑफ नोबल मैन, श्रेष्ठ व्यक्ति के मृत्यु की तुलना की गई है आध्यात्मिक प्रेमियों के प्रेम से। दूसरा है विजुअल इमेजरी, हमारे नज़रों के आगे एक पिक्चर आता है जब हम बोलते हैं कि एज वर्चुअस मैन पास माइंडली अवे। और ऑरल इमेजरी, जब हमें कोई ध्वनि का एहसास होता है, जैसे एंड विस्पर टू देयर सोल्स, अपनी आत्मा को चुपके से कहते हैं, विस्पर करते उसके कानों में फुसफुसाते हैं। ओनोमैटोपोइया का मतलब होता है अगर कोई ऐसा साउंड जो हम जब बोलते हैं तब भी वैसा होता है और उसको एहसास करते हैं तब भी वही होता है, मैंने साउंड का नाम ही उससे रिलेटेड है। जैसे विस्पर, फुसफुसाने को हम विस्पर बोलते हैं, तो इस ध्वनि को बोला गया ओनोमैटोपोइया। दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार है। एलिटरेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें क्या होता है एक ही स्वर दोहराता रहता है उस लाइन में, देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, लाइक हियर द साउंड एस इज रिपीटेड इन सम ऑफ देयर सो सैड फ्रेंड्स डू से, स रिपीट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, लाइन्स 5 to 8। So let us melt and make no noise, no tear floods, no sighs tempest remove, were profanation of our joys to tell the lady our love। मीन्स यहाँ पर वो बोल रहा है कि चलो, सो लेट अस मेल्ट, चलो हम पिघल जाते हैं। मेल्ट मतलब पिघलना, यहाँ पर पिघलने का मतलब है एक दूसरे में समा जाते हैं। एंड मेक नो नॉइज़, और बिना शोर शराबा किए जुदा हो जाते हैं। नो टीयर फ्लड्स, फ्लड मतलब बाढ़, टीयर मतलब आंसू, आंसुओं के सैलाब मत बहाओ। नॉर साई टेम्पेस्ट, साई मतलब आए, टेम्पेस्ट मतलब तूफ़ान, और ना ही तुम ऐसे आए भरो जैसे वो तूफ़ान जैसे लगे। मैंने ज़्यादा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ किया गया, जिसे हाइपरबोली कहते हैं। वो बोलता है ज़्यादा शोर शराबा, दिखावा, प्रपंच, प्रिटेंशन मत करो, क्योंकि इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज़, क्योंकि इससे ये क्या होगा, हमारे जो जॉयज़ हैं, जॉयज़ कौन से, द जॉयज़ ऑफ लव, पीसफुल लव, द स्पिरिचुअल लव, हमारा जो प्रेम रूपी जो आनंद है, उसका ये बेइज्जती हो जाएगी, उसकी बदनामी होगी। प्रोफेनेशन मतलब मलिन करना, ये उसे मलिन कर देगा, उसे अनसैक्रेड कर देगा, उसे अपवित्र कर देगा। क्या अपवित्र कर देगा, अगर तुम शोर शराबा करके ज़्यादा टीयर फ्लड, ज़्यादा आंसू बहाओगी, तो ज़्यादा उदास रहोगी तो। और क्या होगा, टू टेल द लेडी आवर लव, ये भी बहुत गलत होगा। हमारा प्रेम तब मलिन हो जाएगा जब हम, लेटी मतलब कॉमन मैन, जब हम आम आदमी को अपना प्रेम के बारे में रोना धोना जता देंगे, उनको आगे प्रपंच करेंगे, दिखावा करेंगे आम आदमी के सामने, तो वह भी हमारे प्रेम की बदनामी है। द स्पीकर आस्क्स अ बिलवड टू पार्ट क्वाइटली एंड मेल्ट एंड मर्ज इनटू ईच अदर विदाउट मच अप्रोर, अप्रोर मतलब हो हल्ला। इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, द विजुअल इमेजरी ऑफ मेल्टिंग टुगेदर, जैसे हम दो चीज़ पिघल के एक साथ में मिल जाती है, तो उसमें जैसे हमारे नज़रों के हम तस्वीर आ जाती है, तो विजुअल इमेजरी उसे ही कहते हैं।
डन इज ऑल्सो यूजिंग हाइपरबोली। यहाँ पर हाइपरबोली आपको बताया था, अतिशयोक्ति अलंकार, एक्स्ट्रावैगेंट, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति। यहाँ पर यूज़ किया उसने मेटाफर ऑफ फ्लड्स फॉर टीयर, आंसू के लिए बाढ़ का मेटाफर यूज़ करके, और आहों के लिए टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट फॉर साइज, आहों के लिए तूफान का मेटाफर यूज़ करके उसने यहाँ पर हाइपरबोली यूज़ किया है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं लाइन्स 9 to 12 में। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres, though greater far, is innocent। अब आपने देखा होगा, अभी तक हमने तीन पैराग्राफ कर लिए हैं, ये तीसरा पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ, हर स्टैंजा 4 लाइन्स का है। हर 4 लाइन्स के स्टैंजा को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। और हर क्वार्टर में राइमिंग सीक्वेंस कैसी है देखिए। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres, though greater far, is innocent। देखिए पहले लाइन का फियर्स और थर्ड लाइन का स्फीयर्स आपस में राइम कर रहे हैं, और सेकंड लाइन का मेंट और फोर्थ लाइन का इनोसेंट आपस में राइम कर रहे हैं। तो क्या सीक्वेंस हो गई? ए बी। देखिए ए बी सीक्वेंस आ रही है इसमें, राइमिंग सीक्वेंस। इन लाइंस का मीनिंग है, जिस तरह से धरती जब कांपती है तो बहुत सारे तबाही लेकर आती है, लोगों में भय पैदा करती है, उसी तरह से जिन लोगों का प्रेम उछला होता है, थोथा होता है, गहरा नहीं होता, वे भी अगर बिछुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति शोक व्यक्त करते हैं, डर लगता है उन्हें दूर होने से। लेकिन हमारे बीच में डर कैसा? देयर शुड बी नो फियर्स। हमारे बीच में डर कैसा? हमारा प्रेम छोटा थोड़ी है, कोई धरती के कामने जैसा थोड़ी है। अब अगर धरती से बाहर हमारे पूरे अंतरिक्ष में दूसरे स्फीयर्स, बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, ट्रेपिडेशन मतलब कांपना, ऑफ द स्फीयर्स, दूसरे अंतरिक्ष ग्रह, नक्षत्र, अगर वे कांपते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। दो ग्रेटर फार, जो कई बहुत दूर है, ग्रेटर फार बहुत दूर है, इज़ इनोसेंट, इनोसेंट में अननोन, उनका तो हमें पता ही नहीं चलता। उसी तरह से जो बड़ी चीज़ों का पता नहीं चलता है और छोटी चीज़ों का ज़्यादा पता चलता है। जो जिनमें कम, बोलते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, जिनमें कम टैलेंट होता है वो ज़्यादा दिखाते हैं। इसी तरह से कवि कह रहा है कि हमारा प्रेम तो बहुत अमर है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, गहरा प्रेम है, इसका दिखावा नहीं होना चाहिए। इसमें वापस से देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, मेटाफर हुआ है, अर्थक्वेक का हुआ है शैलो लव के लिए। शैलो मतलब उथला प्रेम मतलब जो गहरा नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं लाइन 13 to 16 पे। डल सबलुनरी लवर्स लव whose soul is sense cannot admit absence because it doth remove those things which alimented it। इसका मतलब है डल मतलब फीका, विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, डल फीका। सबलुनरी लवर्स मतलब वे प्रेमी जो खाली दिखावे वाला प्यार करते हैं। यहाँ पर सब लूनर वर्ड से बना, लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, तो लूनर सब लूनरी मतलब ऐसे प्रेमी जिनका प्रेम चंद्रमा की तरह फीका पड़ जाता है। क्योंकि चंद्रमा को देखो आप, धीरे धीरे चंद्रमा की आकृति बड़े से छोटी होती जाती है। चंद्रमा समय के साथ साथ उसका रंग फीका पड़ता है, उसमें धब्बे हो जाते हैं। तो जिस तरह से चंद्रमा फीका पड़ जाता है, उस तरह से चंद्रमा की तरह इन जो शारीरिक बंधनों से बंधे हुए जो प्रेमी हैं उनका प्रेम भी फीका पड़ जाता है। बिकॉज हु सोल इज सेंस, क्योंकि उनकी आत्मा क्या है, उनके प्रेम की आत्मा क्या है, किससे जुड़ी हुई है? वो तो सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है। अगर सेंस नहीं होगा, अगर बॉडी नहीं होगा उनके पास, उनकी शारीरिक अंगों से सेक्सुअल प्रेम है उनका, दे कैन नॉट एडमिट एब्सेंस। वे एक दूसरे का एब्सेंस एडमिट मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, एक दूसरे का से जुदाई सहन नहीं कर सकते। क्यों? वे शरीर से जुड़े हुए हैं। बिकॉज इट डथ रिमूव दोज थिंग्स, डथ मतलब डज रिमूव मतलब रिमूव्स दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि ये वह चीज़ हटा देती है जिसने उनको एलिमेंटेड मतलब कंपोज, जिसने उसको बनाया, उस प्रेम को कंस्टिट्यूट किया है। किसने प्रेम को कंस्टिट्यूट किया? उनके प्रेम को उनके शरीर ने कंस्टिट्यूट किया है, न कि उनकी आत्मा ने। इसलिए वे लोग जुदाई सहन नहीं कर सकते। वे उनका चंद्रमा की तरह उनका प्रेम धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। मैंने सबके वर्ड मीनिंग्स लिख रखे हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। लास्ट में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच दिया है।
अब फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें क्या है, पोएट ने मेटाफर यूज़ किया है, सोल इज सेंस, उनका आत्मा ही उनका शरीर ही उनकी आत्मा है, उनका शारीरिक प्रेम ही उनकी आत्मा है। एलिटरेशन यूज़ किया है, जिसमें एलिटरेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे स साउंड रिपीट हो रहा है, हु सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, स साउंड रिपीट हो रहा है, और एल साउंड भी रिपीट हो रहा है डल सबलूनरी लवर्स लव में। तो यहाँ पर वापस एलिटरेशन है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। We are coming to the stanza with lines 17 to 20. But we by a love so much refined. बट से क्यों शुरू किया? क्योंकि पिछले स्टैंजा में बताया था, जिनका प्रेम शारीरिक होता है उनका चंद्रमा की तरह फीका हो जाता है प्रेम। उसी तरह से लेकिन अगर हमारा प्रेम देखा जाए तो बट वी बाई अ लव, लेकिन हम अपने प्रेम से क्या है, सो मच रिफाइंड, इतने शुद्ध हैं, रिफाइंड मतलब प्योर, हम इतने प्योर हैं, हमारा प्रेम इतना प्योर है, इतना शुद्ध है, दैट आवरसेल्व्स नो नॉट व्हाट इट इज़, कि हम खुद नहीं जानते कितनी चरम सीमा तक पहुंच गया, हम खुद उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। देखिए नो नॉट, न साउंड रिपीट हो रहा है, तो क्या है ये, यस एलिटरेशन। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, हम इंटर एश्योर्ड हैं माइंड में, हम दोनों अपने मन से इतने आश्वस्त हैं, इंटर एश्योर्ड में आश्वस्त हैं अपने मन से कि हम दोनों एक दूसरे के ही हैं, इसलिए हम केयरलेस हैं। किसके प्रति केयरलेस हैं? आइज लिप्स हैंड्स टू मिस, मतलब हम आइज़ और लिप्स और हैंड्स को मिस करेंगे, इसके प्रति हम केयरलेस हैं, हमें इसकी परवाह ही नहीं है। क्यों? हम शरीर से प्रेम नहीं करते, जो शरीर से प्रेम करते हैं उनको ही आइज़ लिप्स हैंड्स इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी तो एक अटूट जोड़ जो हमारा है वो तो आत्मा है, तो हम एक दूसरे के प्रति आश्वस्त हैं, हमें शोक नहीं मनाना चाहिए जुदा होते समय। तो यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? एलिटरेशन यूज़ किया वापस से, केयरलेस आइज लिप्स हैंड्स टू मिस, एस साउंड रिपीट हो रहा है। फिर सिनेकडकी यूज़ किया, सिनेकडकी आपके सामने नया होगा अलंकार। इसमें क्या होता है, अगर पूरी बड़ी चीज़ को उसके एक अंग के द्वारा संबोधित किया जाता है, इफ़ अ लार्ज थिंग इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, देन दिस इज नोन एज सिनेकडकी। हियर द सिनेकडकी इज व्हाट? यस, guess it, it is eyes, lips and hands, because they represent the whole body. So this here the synecdoche is used by John Donne as a figure of speech. Now in lines 21 to 24 you can see the golden picture. So what is it about? Here the poet says that our two souls therefore which are one. अभी जैसे पिछले स्टैंजा में कहा, हम तो प्रेम से जुड़े हुए हैं, हमारा तो शारीरिक प्रेम नहीं आध्यात्मिक प्रेम है। तो our two souls therefore which are one, हमारे दोनों की आत्माएं असल में which are one है, two is one। देखिए पैराडॉक्स यूज हो रहा है, विरोधाभास। हमारी दो आत्माएं असल में एक है। दो आई मस्ट गो एंड्योर नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन। हाँ, दो आई मस्ट गो, मुझे जाना है, लेकिन एंड्योर नॉट येट ए ब्रीच, लेकिन तुम इसे एंड्योर मतलब सहन करना, नॉट येट ए ब्रीच, तुम इसे हमारे प्रेम में ब्रीच मतलब ब्रेक इन लव, ये हमारे में जुदाई ब्रेक, हम दोनों का रिश्ता टूट नहीं रहा है ना, देयर इज़ नो ब्रेक इन लव, सो एंड्योर नॉट, इसलिए तुम्हें सहन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें सहन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसमें भी एंजॉय करो, क्योंकि हम दोनों का प्रेम शारीरिक थोड़ी है, इसको हमारे प्रेम में दरार थोड़ी आएगी, बट एन एक्सपेंशन, बल्कि हमारा प्रेम तो और फैलेगा, एक्सपैंड होगा, विस्तृत होगा। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जिस तरह से सोना, जब सोने को पीटा जाता है हथौड़े से तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, थिन हो जाता है, वो पतला हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, और एयरी मतलब लाइट, लाइट मतलब वो रोशनी वाला लाइट नहीं, या लाइट का मतलब है हल्का, हाँ वो वाला ऐसा सोना जो पहले क्यूब में होता है, क्यूब फॉर्म में होता है, लेकिन उसको पीटते हैं तो चादर का रूप ले लेता है, पतला हो जाता है और हल्का हो जाता है। उसी तरह से हमारा प्रेम भी कैसा है, अगर हम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हमारे प्रेम के जो भारीपन है वो कम हो जाएगा, प्रेम में जो हमारे दूसरे के प्रति जो शिकायतें हैं वो भी कम हो जाएंगी, हम तो और एक दूसरे को मिस करेंगे। एक दूसरे को क्यों मिस करेंगे, किस तरह से, आध्यात्मिक रूप से मिस करेंगे, ना कि शारीरिक रूप से, और हमारा प्रेम तो और फैलेगा, जिस तरह से सोना और फैल के आकार बड़ा ले लेता है, क्षेत्रफल में, एरिया में बढ़ जाता है, उसी तरह से हमारा प्रेम भी एक्सपैंड होगा, न कि कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो यहाँ पर पैराडॉक्स जैसे आपको बताया था, टू सोल्स आर वन, विरोधाभास। एंजैम्पमेंट क्या होता है? एंजैम्पमेंट मतलब अगर एक लाइन टूट के दूसरे लाइन में उसका कुछ हिस्सा चला गया है तो उसे एंजैम्पमेंट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एंड्योर नॉट येट, पूरा नहीं हुआ है, एंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, मतलब तुम ये ब्रीच में ब्रेक इन लव, तुम्हें सहन नहीं करना पड़ेगा हमारे प्रेम में एक ब्रेक। क्यों? क्योंकि हम दोनों तो आत्मा से जुड़े हुए हैं। अगेन सिमिली यूज़ किया गया, कैसे? उसने सोने की तुलना अपने उससे की है, गोल्ड की तुलना अपने लव से की है। ओके, तो यहाँ अगेन सिमिली यूज़ किया गया। पैराडॉक्स अगेन यूज़ किया गया। पैराडॉक्स का मतलब था विरोधाभास, जैसे बताया था आपको मैंने। कहाँ पर यूज़ किया गया है? शुरू में तो यूज़ किया ही है, वापिस है जब बोला है अगर तोड़ना और फैलना दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, टूटना और विस्तार होना, लेकिन एक ही लाइन में देखिए, अगर एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स आते तो पैराडॉक्स होता है। अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन। नेक्स्ट अलिटरेशन यूज़ किया है, बी साउंड रिपीट हो रहा है, ब्रीच बट, ब साउंड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वी कम टू लाइन 25 to 28. In these lines, see what the poet says. Poet is using his very nice metaphysical conceit, अपना उसने वो हथियार यूज़ किया, कौन सा? जो मैंने शुरू में बताया था, कंपास। बहुत मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा। मेन क्वेश्चन ही कंपास के ऊपर आता है, डन के साथ एसोसिएटेड है ये मेन टूल। देखिए कैसे, इफ़ दे बी टू दे आर टू, दे किसके लिए बोला है? जैसे आप पिछले स्टैंजा को रिफ़र करिए, उसमें क्या था? सोल्स, हमारी सोल्स टू हैं लेकिन वो वन है, हमारी दोनों आत्माएं असल में एक हैं। यहाँ पर बोला है इफ़ दे बी टू, अच्छा मान लो वे दो हैं, अगर वे दो हैं तो भी वे दो कैसे हैं? वे दो कंपास के दो फीट की तरह हैं, कंपास के दो पैरों की तरह हैं। दे आर टू एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, दाई सोल द फिक्स फुट, तुम्हारी आत्मा कैसी है? तुम्हारी आत्मा कंपास का वह जो लेग जो बीच में रहता है, सेंटर में रहता है, उसकी तरह फिक्स्ड है, स्थिर है, तुम घर पे रहोगी। मेक्स नो शो, तुम कोई मूवमेंट नहीं कर रही हो। टू मूव, मेक्स नो शो टू मूव, बट डथ इफ़ द अदर डू, लेकिन तुम मूव करती हो अगर दूसरा मूव करता है तो। मतलब कंपास का दूसरा फुट अगर सर्कल बनाता है तो सेंटर वाला फुट जो सेंटर में रहता है वाला फुट उसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, उसको सपोर्ट करता है। मतलब मैं तो बाहर घूमूंगा, सर्कल बनाऊंगा और तुम घर पे रहोगी, लेकिन तुम मेरे से जुड़ी हुई रहोगी, तुम्हारा प्रेम मुझे हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, तुम मेरी तरफ झुकी हुई रहोगी, मैं तुम्हारी तरफ झुका हुआ रहूँगा हमेशा। हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, तो तुम्हारा प्रेम मेरे से कभी जुदा नहीं होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किया, सिमिली कंपेयर किया है ना लव को ज्योमेट्रिकल कंपास से। अब देखिए आइटरेशन है, आइटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, टू रिपीट हुआ है देखिए 25th लाइन में, तो ये है आइटरेशन। नाउ लेट अस कम टू द लाइन नंबर 29 to 32। अब इन लाइन्स में क्या बोला है कवि ने? अब वही कंपास को अब इसने और ज़्यादा डिफाइन करके बताया है। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, हालांकि बीच वाला जो है कंपास का जो एक फुट जो है जो सेंटर में रहता है, इन द सेंटर सिट, येट व्हेन द अदर फार डथ रोम, लेकिन फिर भी जब दूसरा दूर घूमता रहता है, रोम मतलब भटकना, दूसरा दूर मूव अबाउट फ्रीली, दूसरा दूर घूमता रहता है, इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट, वह उसकी तरफ लीन मत झुकना, उसकी तरफ झुक जाता है और हार्क के साथ एक एंगल बनाता है, उसको अटेंड करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, और जब दूसरा वाला पूरा घेरा बना के बीच में आ जाता है, वापस अपने पास पहले वाले फुट के पास आ जाता है, घर आ जाता है, तो ये झुका हुआ एंड वापस से सीधा हो जाता है। उसी तरह से कवि अपनी पत्नी से जुदाई की तुलना कंपास के साथ कर रहा है कि हालांकि मैं बाहर घूमता रहूँगा और तुम घर में रहोगी, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा और तुम मुझे मिस करोगी आध्यात्मिक रूप से, लेकिन जब मैं घर आऊँगा तब तुम्हें वापस से वो प्रेम, तुम वापस से उसको जॉयज़ ले पाओगी वापस। यू विल एन्जॉय ऑल द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम अस। द स्पीकर यूजेस पन का मतलब क्या होता है? अगर एक ही लाइन के दो मतलब, एक ही वर्ड के दो मतलब होते हैं तो उसे पन कहा जाता है। व्हेन क्लोजिंग कैसे यूज़ करें? बाय सेइंग दैट द कंपास व्हेन क्लोजिंग कम्स होम मतलब कंपास के फुट के लिए भी बोला है कम्स होम, जो सेंटर में आ जाना, और यहाँ पर कम्स होम पोएट के लिए भी है जब वो वापस घर आएगा। तो यूनियन ऑफ टू सोल्स
व्हेन डन वुड रिटर्न होम वो भी है, और यूनियन ऑफ द 2 फीट ऑफ द कंपास भी है, जब दूसरा घेरा बना के वापस बीच में आ जाता है। लाइन 33-36 लास्ट स्टैंजा है पोएम का। सच विल दो बी टू मी, तुम भी इस तरह से रहोगी जैसे कंपास है, उस तरह से तुम भी मेरे प्रति वैसा ही प्रेम दिखाओगी। हु मस्ट लाइक द अदर फुट, दूसरे फुट की तरह, ऑब्लिकली रन दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, जो कि दूसरे फुट की तरह, कौन से फुट की तरह, जो सेंटर में है, जो स्थिर है उसकी तरह क्या करोगी, तुम वहीं पर स्थिर रहोगी, लेकिन मैं जो बाहर चक्कर काटता रहूँगा, तो तुम्हारा जो फर्मनेस है, तुम्हारी जो फर्मनेस, स्टेडीनेस, स्थिरता, मेक्स माई सर्कल जस्ट, तुम अगर सेंटर में टिकी हुई रहोगी तभी मैं पूरा सर्कल काट पाऊँगा, मतलब मैं अपने कार्य तभी ढंग से कर पाऊँगा अगर तुम स्थिर रहोगी। अगर तुम ज़्यादा उदास होगी तो मेरा मन भी मचलता रहेगा, मुझे भी घर वापस जल्दी आना पड़ेगा, तो मैं भी अपने काम मन से नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे काम को परफेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए कि तुम भी स्थिर रहो, तुम अपने मानसिक रूप से स्थिर रहो, तुम ज़्यादा शोक प्रकट ना करो और मुझे खुशी खुशी विदा करो। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और मुझे वापस से वहाँ लाने में सक्षम हो जाओ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मतलब तुम्हारी स्थिरता ही मेरी सफलता का कारण होगी। कैसी स्थिरता? इमोशनल स्थिरता। यू शुड नॉट बी इमोशनली हाइपर सेंसिटिव। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया है? एलिटरेशन। एम साउंड एलिटरेट हो रहा है, मीन्स रिपीट हो रहा है बार बार, अनुप्रास अलंकार है। मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, मतलब एम साउंड इज रिपीटिंग। सो स्टाइल ऑफ द पोएम, आप देखिए क्या है स्टाइल ऑफ द पोएम। आपको बताया था ये मेटाफिजिकल पोएम है जिसमें मेटाफर्स कई सारे यूज हुए हैं, कंपास, अर्थक्वेक, डाइंग मैन, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज, मेनी थिंग्स हैव बीन यूज। तो ये क्या आपका मेटाफरिकल पोएम है। मेटाफिजिकल क्यों? क्योंकि इसमें आपके आध्यात्म, आपके प्रेम की तुलना दूसरे वस्तुओं से, टेंजिबल थिंग्स, मतलब भौतिक वस्तुओं से प्रेम की तुलना की गई है, इसलिए इसे बोला गया है प्रेम। क्या है? प्रेम तो इमोशनल, ये इनटेंजिबल थिंग है। जो इनटेंजिबल थिंग है तो उसकी तुलना टेंजिबल से करते हैं, तो उसे मेटाफिजिकल कहते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी। जैसे आपने देखा था हमारा कैसे शुरू रहा था, पहला लाइन और थर्ड लाइन मैच कर रहा था, और सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन आपस में राइम कर रहा था, तो इसमें हो गया ए बी। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 9 क्वार्टर्स। देखिए पूरे पोएम में 9 स्टैंजा हैं, हर स्टैंजा में 4 लाइन है, तो 4 लाइन के स्टैंजा को बोलते हैं क्वार्टर्स। 4 लाइन स्टैंजा विद 4 बीट, इयाम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर क्या होता है? एक लाइन में अगर 4 फुट होते हैं तो उस लाइन को टेट्रामीटर लाइन कहा जाता है। 5 फुट होने से पेंटामीटर, 4 फुट होने से टेट्रामीटर। यहाँ पर देखिए 4 फुट कैसे हैं? एज वर, चूवस, एज वर 1 फुट है, चूवस, मैन पास, माइंडली अवे। देखिए एक 4 फुट हो गए ना, एज वर, चूवस, मैन पास, माइंडली अवे, 4 फुट हैं, तो ये टेट्रामीटर हो गया। 4 फुट का मतलब कितने सिलेबल हो गए? 8 सिलेबल। एज एक सिलेबल, वर दूसरा सिलेबल, इस तरह से। 4 फीट मतलब देर आर 8 सिलेबल्स। तो ये कैसा लाइन है? इयाम्बिक टेट्रामीटर क्यों है? इयाम्बिक का मतलब क्या होता है? अगर पहला सुर धीरे और दूसरा सुर तेज होता है तो उसे इयाम्बिक कहते हैं। अब इसमें राइमिंग सीक्वेंस देखिए, अवे और डू से मैच कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रही है, ए। अब दूसरा देखिए, सेकंड और फोर्थ लाइन को देखिए, गो और नो मैच कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। तो राइमिंग ऑफ सेकंड और फोर्थ लाइन्स, गो नो, तो बी ए बी राइमिंग सीक्वेंस होगी। अब आप देखिए सुर कैसे जा रहा है इसमें, इयाम्ब क्यों है, इयाम्बिक क्यों है? डाडम। ये डाडम एक तरह से एक पैरामीटर बना दिया गया है इयाम्बिक के लिए। शुरू में स्मॉल लेटर्स में, मतलब वो धीरे, वो अनस्ट्रेस्ड रहेगा, और DUM कैपिटल लेटर है, मतलब उसे तेज बोलना है आपको, सुर ऊंचा करके बोलना है। जैसे एज वर, चूवस, मैन पास, माइंडली अवे, एंड दिस टू देयर सोल्स टू गो, इस तरह से। तो ये इयाम्बिक आपको क्या लिखना है? इयाम्बिक टेट्रामीटर, ए बी राइमिंग सीक्वेंस, एंड मेटाफिजिकल पोएम विद 9 क्वार्टर्स। अब हम आते हैं अपने MCQs पर। डियर, I hope you all might have got the poem very nicely. I have explained you that spiritual love is far more better than the physical love.
Dunn wants to say to his wife that don't grieve, don't feel sad for we are departing, because we will meet again. You have to be steady. So as the founder of Metaphysical School, what is John Donne's striking feature? Answer it. पहला है love is compared to nature, कि लव इज़ कंपेयर विथ कंपास. जॉन डन का स्ट्राइकिंग फीचर, सबको हक्का बक्का कर देने वाला मेन फीचर क्या है, जो उसका इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में जॉन डन जाना जाता है कि वो जिससे तुलना करता है, क्या है, कंपास की नेचर. लव की तुलना किसके साथ करता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? ए बी बी ए कि ए बी ए बी. तीसरा है, व्हाट इज द मीटर ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम? याम्बिक पेंटामीटर की याम्बिक टेट्रामीटर. फोर्थ है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन द पोएम? 9 की 7. यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. फिफ्थ है, व्हाट इज द पोएम एड्रेस्ड टू बाय जॉन डन? हुम इज द पोएम एड्रेस्ड टू बाय डन? डन ने किसको संबोधित करते हुए पोएम लिखी है? अपनी पत्नी को कि धरती के सारे प्रेमियों को. लाइफ और लवर्स ऑन द अर्थ. व्हाट डज डन वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम? पोएम के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? ट्रू लव इज स्पिरिचुअल, सच्चा प्रेम आध्यात्मिक होता है, कि ट्रू लव इज फिजिकल, कि सच्चा प्रेम शारीरिक होता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन ट्रू लव सेपरेशन शुड बी, सच्चे प्रेम में जुदाई कैसी होनी चाहिए? नॉइजी मतलब शोर शराबे वाली, हो हल्ला वाली, कि क्वाइट शांतिपूर्ण. So these were my questions to you. Answer them quickly. I know all if you can. Just give the answers in the comment box. I am eagerly awaiting. Thanks. Thanks for the video. Do like it and share it and write comments. I would just love to hear comments from you, and do suggest any changes if you need. Fine. Thank you very much.